मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आप से लेकर सदा तक करता रहेगा। आई विल लिफ्ट अप माई आई अनटू द हिल्स, फ्रॉम वेयर डज माई हेल्प कम? माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड हु मेड हेवन एंड अर्थ। ही विल नॉट let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. अजीजों, आप सभी का स्वागत हम आज की इस इबादत में करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जैसा कि निरंतर हम मीडिया के माध्यम से प्रार्थनाओं के अंदर जुड़े हुए आ रहे हैं और ऑनलाइन हम वर्शिप कर रहे हैं, उसके अंदर आप लोग सब सहभागी हैं। इसके लिए परमेश्वर को महिमा मिले। एंड वी विल वेलकम यू इन दिस होलीएस्ट मोमेंट ऑफ संडे वर्शिप। लेट अस प्रे बिफोर वी स्टार्ट आवर टुडेज वर्शिप. Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful moment and this morning, Lord, that you have added in our lives. And Lord, as we all are here and indulge ourselves in this Sunday worship, O Lord, and Lord, we come before your throne, O Lord. You are the master and the creator and source of every blessings, Lord. And Lord, pour out your abundant blessings upon all of us, and this worship may acceptable unto you, O Lord. And Lord, also open our hearts, mind and soul, and whatever we may hear, we may grab. And Lord, it may bring 100-fold of fruit in your vineyard. And Lord, also, you may glorify through our deeds and actions, Lord. We commit every one of us into your mighty hand, and let your glory be shine upon all of us this morning and this worship. Thank you, God, for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, अब यह वक्त होगा कि हम अपने पहले गीत को गाएंगे, जो कि पाया जाता है English Methodist Hymnal Song number 433, Jesus Keep Me Near the Cross, और हिंदी के अंदर पाया जाता है 155, यीशु रख सलीब के पास. We will sing our first song to glorify God, which is found in English Methodist Hymnal Song number 433, Jesus Keep Me Near the Cross, and in Hindi Methodist Hymnal Song number 155, यीशु रख सलीब के पास. आइए हम परमेश्वर को इस गीत के दौरान महिमा दें.
अजीजों, हम लोग अपने स्थानों पर खड़े होंगे और अपने ईमानों का इकरार परमेश्वर के आगे करेंगे। रसूलों का गीता हम लोग सब एक साथ मिलकर कहेंगे, जो कि पाया जाता है इंग्लिश मेथोडिस्ट हिम्नल, उसका सेक्शन नंबर 738, और हिंदी के अंदर पेज नंबर 1 के अंदर ये रसूलों का कीदा या अपोस्टल्स क्रीड पाई जाती है। We will affirm our faith before God by reading Apostles' Creed, which is found in English Methodist Hymnal, section number 738, and in Hindi Methodist Hymnal, page number 1. Let us unite in this historic confession of the Christian faith. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. The third day He rose from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. My friends, for today's responsive reading has been taken from the book of Psalms number 23. Book of Psalms number 23, verses beginning from 1 to 6. And the first verse I will be reading, and the second verse you can join, and the last verse we will read all together. First, यानी जो आज की उत्तरवादी पाठ लिया गया वो लिया गया है भजन संहिता 23 में से, और 1 से लेकर 6 वचन तक। पहला जो आयत है मैं पढ़ूंगा, दूसरी जो आयतें होंगी उसमें आप लोग सब शामिल होंगे, और आखिरी आयत को हम लोग सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आखिरी आयत को आइए हम लोग सब एक साथ मिलकर पढ़ें। निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आइए हम लोग सब होसिता इश्बाब की एक साथ मिलकर गाएंगे। होसिता इश्बाब की और बेटे की और रूल कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आप लोग सब बैठ सकते हैं। अब ये वक्त होगा कि हम अपने सरों को खुदावंत की हुजूरी में झुकाएंगे और हम लोग दुआ मांगेंगे अपने चर्च के लिए, अपने पासवानों के लिए, मिशनरीज इवेंजलिस्ट के लिए, अपने देश के लिए, और तमाम बातों को हम अपनी प्रार्थनाओं के अंदर, विनतियों के अंदर याद रखेंगे, और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना में हम लोग सब शामिल होंगे। और मैं निवेदन करता हूं पास्टर मन कुमार राय से कि वो आए और पास्टरल प्रेयर के अंदर हमारी अगुवाई करें। आइए हम दुआ करेंगे। मान जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते हैं आज के ये दिन के लिए। खुदा बाप, आपने इस प्रभु परमेश्वर पहले हफ्ता में प्रभु परमेश्वर हम सबको लेके आए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुआ करते प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन को प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं। होने दे प्रभु परमेश्वर जो कुछ भी प्रभु परमेश्वर प्रभु आज के दिन हो रहे हैं, खुदा बाप इस आपकी इससे महीना आपकी महिमा और प्रशंसा हो। दुआ करते खुदा बाप परमेश्वर पिता और पादी साहब के लिए, और जो वचन लेके आते हैं इससे आपके नाम की महिमा और प्रशंसा हो। और खुदा बाप इनके सेहत में और इनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष करें। इनके घर परिवार के लिए दुआ करते हैं खुदा बाप, इनके सेवकाई में और इनके प्रभु परमेश्वर हर क्षेत्र में आप प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें।
दुआ करते हैं पादी साहब, प्रभु परमेश्वर पास्टर सारन सावंत इनके सेहत के लिए, इनके मिनिस्ट्री में बहुत ऐसे आशीष करें खुदा बाप। और मैं दुआ करता हूँ प्रभु परमेश्वर तमाम हमारे वर्कर्स के लिए, प्रभु परमेश्वर एक एक जन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। दीपक जी और उनके घर परिवार को और उनके सेवकाई में, और विशेष करके उनके मिसेस को प्रभु परमेश्वर पूरी तरह से ताकत और तंदुरुस्ती दो, जो प्रभु परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। और दुआ करते हैं खुदा बाप तेरे बेटे प्रभु परमेश्वर नंदराज जी के लिए, उनके घर परिवार के लिए, उनके पूरे फैमिली के लिए, और प्रभु परमेश्वर इनके सेवकाई में, इनके काम में बहुत ऐसे आशीष करें। दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर अशोक और उनके घर परिवार के लिए, इनके काम में बहुत ऐसे आशीष करें। दुआ करते हैं लोजिनेस के लिए और उनके घर परिवार के लिए, और प्रभु परमेश्वर उनके काम में आशीष करें। दुआ करते खुदा बाप इसी तरह मनीष उनके घर परिवार और उनके काम पर आशीष करें। दुआ करते क्रिस्टी दीदी के लिए और उनके घर परिवार के लिए, उनके बच्चों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मैं दुआ करता हूँ प्रभु परमेश्वर हमारे अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के हिंदी इंग्लिश नेपाली कलीसिया को प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं। और दुआ करता हूँ खुदा बाप पास्टर कमेटी के लिए और एक एक लोगों के लिए खुदा बाप बहुत सबको ताकत और तंदुरुस्ती दो, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करो। मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप हमारे अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के हिंदी इंग्लिश नेपाली कलीसिया के तमाम लोगों को, एक एक विश्वासी को तेरे चरणों में रखते हैं, जो प्रभु परमेश्वर पैंडेमिक के द्वारा उन लोग को जो भी तकलीफें और वो आई सब खुदा बाप तेरे चरणों में रखते हैं। उनको बहुत ऐसे आशीष करे, जिनको नौकरी नहीं है असल नौकरी और जॉब मिलने में सहायता और मदद करे, और उनके परिवार में बहुत ऐसे आशीष करे। मैं दुआ करता हूँ प्रभु परमेश्वर DRC के तमाम ऑफिसर्स को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, बहुत ऐसे आशीष और ताकत और तंदुरुस्ती दो। और मैं दुआ करता हूँ बिशप साहब के लिए और मैडम सुबिता मंडल और तमाम लोगों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता है। हमारे प्रभु परमेश्वर तमाम हमारे अपोस्टल का प्रभु परमेश्वर तमाम बुजुर्गों को और प्रभु जवानों को और उन बच्चों को, संडे स्कूल टीचर्स को और प्रभु परमेश्वर तमाम एक एक लोगों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। सबको बहुत ऐसे आशीष करें, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करो। और खुदा बाप जितने भी प्रभु परमेश्वर एक्टिविटी के लोग हैं उन सबको प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। सबको बहुत ऐसे ताकत और तंदुरुस्ती दो, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मैं दुआ करता हूँ इस देश के लिए और प्रभु परमेश्वर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल तमाम ऑफिसर्स को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदा बाप तमाम प्रभु परमेश्वर पुलिस कर्मी को, ट्रैफिक पुलिस, BSF का जवान तमाम लोगों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। सबको प्रभु परमेश्वर तेरे सुरक्षा के अंदर मांगते हैं। और मैं दुआ करता हूँ इन फ्रंट लाइन में जो सेवा करते हैं डॉक्टर, नर्स और तमाम स्टाफ को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित दे इन तमाम बीमारियों से प्रभु। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को पंख तले ढांपती है खुदा बाप, इसी तरह सबको ढांपे रख और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करो। और मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप तमाम प्रभु परमेश्वर एक एक जनों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रभु परमेश्वर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करो। मैं दुआ करता खुदा बाप परमेश्वर एक एक हमारे अपोस्टल का प्रभु परमेश्वर एक एक नौजवानों को एक बार फिर से तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रभु परमेश्वर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करो। उनका जो भी क्लास चल रहे हैं और तमाम प्रभु परमेश्वर जो कन्फर्मेशन क्लास और टीचर्स को और जितने भी स्टूडेंट हैं सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। सब कुछ असल तरह के हो सके और तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप आपने हमारे प्रार्थना और विनती को सुना, इसके लिए धन्यवाद। आगे यदि कोई शरीर में कमी कमजोरी है उन सबको बहुत प्रभु छोकर पूरी तरह से चंगाई करें। मिस्टर अरुल हैरिस उनको पूरा तरह से चंगाई कर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करो। मैं प्रार्थना करता हूँ संजोग सुनदास को प्रभु पूरी तरह से चंगाई करें, ताकत और तंदुरुस्ती दो। और मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप अमन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ, पूरी तरह से चंगाई करे और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करो। मैं दुआ करता हूँ रेवरेंड कुर्नोलिस रॉय, उनको खुदा बाप अपने बेटे को पूरी तरह से छोकर चंगाई करे, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करो। यदि कोई ऐसे हिंदी इंग्लिश में प्रभु परमेश्वर कोई बीमार है तो खुदा बाप उनको भी छोकर चंगाई करे और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करो। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपने हमारे विनती और प्रार्थना को सुना है। ये सारे विनती और प्रार्थना
आपका प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें यूं प्रार्थना करने सिखाया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरे मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन में पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह हमने अपराधी को माफ किया है उसी तरह हमारे अपराधों को माफ कर। हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह तो कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। आइए अजीजों, हम लोग दुआ करेंगे उन लोगों के लिए जो वेडिंग एनिवर्सरीज को और बर्थडेज को इस वीक के दौरान मनाने जाते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और उनके लिए प्रार्थना मांगे और उनके लिए हम आशीषों को मांगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। खासतौर से उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अपने एनिवर्सरीज को बनाने जाते हैं पिता। और पिता, जितना भी ब्लेसिंग्स हैं, जितने भी आशीष हैं, वो सब आपकी ओर से ही है पिता। उनको बहुतायत से आप आशीषित करें और होने दीजिए पिता, जब वो कार्य को करते हैं तो आपके नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा हो। उनके चारों ओर अपने पवित्रता का बाड़ा बांध दें पिता। आपका हाथ उनके ऊपर हो और बहुतायत से उनके जीवनों को आप इस्तेमाल करें। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, सबको हम आपके हाथ में देते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। जैसा अजीजों, हम लोग सब दुआएं करते हुए आ रहे हैं। स्पेशल प्रेयर उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो ग्रसित हैं, चंगाई यूं के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनको चंगाई दे, उनको शिफा दे। और मैं निवेदन करता हूं रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास से कि वो आए और इस स्पेशल प्रेयर के लिए जो हीलिंग प्रेयर है इसके अंदर हमारी अगुवाई करें। प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार से हम लोग पिछले कुछ रविवार के समय, आराधना के समय बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, आज भी हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास है कि परमेश्वर विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगियों को चंगाई देता है। भजन 103 के अनुसार वो चंगाई का देने वाला यहोवा रफा है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो विश्वास से मांगते हैं और वो चंगाई देता है। याकूब की पत्री के 5वें अध्याय के अंदर भी लिखा है कि अगर तुम में से कोई बीमार हो या उसको तकलीफ हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। तो मित्रों, अगर आज आप अपने पलंग पर हैं या आपको कोविड का इन्फेक्शन है या किसी प्रकार से डेल्टा प्लस की कोई आपको इन्फेक्शन की समस्या है या ऐसे भी आप बीमार हैं, तो मैं चाहूंगा कि अपना दाहिना हाथ आप उठा लें अपने सामने और हम आपके लिए प्रार्थना करें। डियर फ्रेंड, एज वी हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट कपल ऑफ संडेज, वी प्रे फॉर द सिक पीपल, those who are sick and weak in their physical body, and we know that among us there are people who are not well. Some of us are really weak in our physical body. Some of us are spiritually also feel let down. And this morning, as we pray for all of us, we pray for you and pray for all of us. We hope and pray that God will touch and heal us completely. So, may I request those who are not able to stand, you can raise your hands, right hands, and say, Lord, have mercy upon me. And those who can stand for some time, and God will touch you and heal you. मित्रों, इस समय हम प्रार्थना करेंगे और उनके लिए मैं कहना चाहूँगा जो बीमार हैं और काफ़ी तकलीफ में हैं, आपका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, आप शायद खड़ा नहीं हो सकते, अपने दाहिने हाथ को उठा दें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जो खड़े हो सकते हो खड़े हो जाएं, थोड़ी देर के लिए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास के प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। हम तो प्रभु के सेवक हैं, अपने आप में कमजोर हैं आपके समान, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु सुनकर चंगाई देता। आइए हम प्रार्थना में चलें और प्रभु के सामने अपने दिल को खोलें, उससे गिड़गिड़ाएं, वो हमारी सुनेगा और हमें चंगाई देगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप चंगाई के देने वाले हैं। प्रभु, आपने कहा कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा।
भजन 103 के अंदर लिखा है कि आप हमारे हर बीमारी से हमें चंगाई देते हैं। आप यहोवा रफा है, चंगाई के देने वाले हैं। आज प्रभु बड़े विश्वास के साथ अपने प्रियजनों को आपके सामने लाते हैं। प्रभु जो बीमार है, दुखी है, कठिनाई में है, तकलीफ में है, हे प्रभु हम जानते हैं कि ये बीमारी आपकी महिमा का कारण है। प्रभु आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम चाहते कि आप उनको स्पर्श करें। जिन्होंने हाथ उठाए प्रभु उनके हाथों को और उनके सरों को आप छू लें प्रभु। स्वर्गीय सामर्थ्य उनको परिपूर्ण करें ताकि वो स्वस्थ हो जाए और कभी न कभी प्रभु आपके भवन में आकर आपकी गवाही दे सके। आज जो प्रभु आत्मिक रूप से अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, निराशा की अवस्था में हम चाहते हैं उनको भी छूइए प्रभु। We thank you, Lord, that you are prayer answering God. And we know, Lord, that you have touched these people who are praying right now. We pray in the name of Jesus, thou sprinkle your holy blood upon them. Let them be healed in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Because you are the great God, you are the healer. When you were in this world 2000 years ago, you touched the people who were filled with leprosy and those who were not well. Even those who have died also, you just call them and they become all right, came into life. प्रभु हम जानते कि जब आप इस दुनिया में थे प्रभु, आज से 2000 साल पहले आपने कुड़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को चंगाई दी प्रभु, और अपने अंधों को आंखें दी, और आपने जो पैरों से महरूम थे चलने में प्रभु आपने उनकी मदद करी, हाथों को ठीक करा प्रभु। आप जीवित प्रभु हैं, वही है जो आज भी है प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते प्रभु हमारे तमाम इन लोगों के लिए, हमारे भाई और बहनों के लिए प्रभु जी, और खासकर उनके लिए जो अपने आप को कोविड-19 के कारण इफेक्टेड मानते प्रभु, आप उन पर दया करें, यीशु के नाम से चंगाई दे प्रभु, ताकि स्वस्थ हो जाएं और आपकी महिमा आपकी बड़ाई कर सकें। हम जानते प्रभु कि आप चंगाई के देने वाले प्रभु हैं, और आपके वचन में लिखा है याकूब के 5वें अध्याय में कि अगर तुम में से कोई बीमार हो, दुखी हो, परेशान हो, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वो उन पर तेल मलकर प्रार्थना करें और विश्वास के प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। प्रभु तमाम इन प्रियजनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जो आज अशुद्ध आत्मा के द्वारा सताए जा रहे हैं, दुष्ट आत्मा के द्वारा प्रभु ग्रसित हैं। हे प्रभु आप जो महान हैं, आपके पवित्र नाम से सारी दुष्ट आत्मा को हम डांटते और चाहते हो निकल जाए इस वक्त, ताकि स्वस्थ हो जाए और आपकी बड़ाई कर सकें। आप चंगाई के देने वाले हैं, आप शुद्ध करते हैं, आप पवित्र करते हैं। ऐसे जीवनों को स्पर्श करिए प्रभु, जिनके जीवन में तकलीफ है, आप उनको शुद्ध करें, पवित्र करें, चंगाई दें। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपने प्रार्थना सुनी है। We thank you Lord that you heard our prayer and you have healed our people who were sick and you have given them completely healing, complete wholeness, because you are the great and mighty and holy God. We thank you Lord for hearing our prayer. हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आपने प्रार्थना सुनी है। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, अब यह वक्त होगा कि हम अपने दूसरे गीत को गाएंगे, जो कि पाया जाता है हिंदी मेथोडिस्ट हिम्नल 221, यीशु नाम को अपने साथ ले। आइए हम परमेश्वर को इस गीत के दौरान महिमा दें। Home with the skin.
कौशला में जमीन और बीज आसमान, मीठा नाम कौशला में जमीन और बीज अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम आज के वचन में से निकाल लेंगे जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 16 वचन तक। पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगा और फिर मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। लेट अस टर्न योर बाइबल विद मी, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 16। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड इन हिंदी एंड देन आई विल रीड इन इंग्लिश। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उनके ऊपर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वे फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए, मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। इंग्लिश के अंदर यहां पर लिखा हुआ है, seeing the crowds he went up on the mountain, and when he sat down his disciples came to him, and he opened his mouth and taught them, saying, blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth. But if salt has lost its taste, how shall its saltness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. This is the holiest word of God, and may God bless us by hearing and reading His holy words. Amen. My friends, now it's time to prepare our hearts, mind and soul to hear the word of God by Reverend Dr. John R. Vishwas. May I request him, please come and share the word of God with all of us. प्रिय भाई और बहनों, आज प्रातःकाल के लिए जो हमारे सामने ईश्वर के वचन का पढ़ा गया वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके पहले पद से 6 पद तक 16 पद तक, माफ कीजिएगा। Dear friends, today the scripture portion that was read to us is found in St. Matthew's Gospel chapter 5 verses 1 to 16. And we have read various things, and this chapter and following 6th chapter and 7th chapter is called Sermon on the Mount. मित्रों, इस संदेश से हम बहुत कुछ सीखते हैं
और किसी ने कहा है कि मसीह जीवन का ये संविधान है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें जो कुछ बताया गया वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन वो तब आवश्यक बन जाता जब हम उसको पढ़ के उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपिता ने एक बार कहा था कि अगर उनके पास वो पुस्तक नहीं जिसको पढ़ते थे, लेकिन ये पहाड़ी उपदेश उनके पास है, तो वही शांति उनको मिलती थी जो उस पुस्तक के द्वारा उनको प्राप्त होती थी। इसलिए ये पुस्तक ना केवल हम लोगों के लिए, लेकिन संसार के बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण है। इसको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी पढ़ा जाता है और इससे बहुत बातें जो इसमें लिखी है ज्ञान प्राप्त की जा सकती है। लेकिन आज प्रातःकाल हमारे थोड़े से समय के ध्यान के लिए मैं इसमें से आपके सामने 5 बातें रखूंगा और हम देखेंगे कि क्या इसमें पाया जाता है। ये जो शिक्षा है यहाँ लिखा है कि वह इस भीड़ को देखकर, यीशु मसीह इस भीड़ को देखकर, एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ रहती थी जिनकी संख्या एक बार 5,000 में, एक बार 4,000 में बताया गया, लेकिन वो पुरुषों की भीड़, महिलाएं भी थी, बच्चे भी होते थे, तो कम से कम 15 से 20,000 के लगभग लोग यीशु मसीह के साथ चलते थे। और एक बड़ी भीड़ उसके पास वहां थी और उनको देखकर वो पहाड़ पर चढ़ गया। और लिखा है कि जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और उसने अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश दिया। मित्रों, मैं चाहूंगा कि हम भी अपने आप को इस समय इमेजिन करें कि हम उस भीड़ में शामिल हैं। अब प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करना चाहता है और वही बातें आज हमारे लिए आज प्रातःकाल के समय संदेश का कारण। लेकिन अगर आप इस अध्याय को और 6वें अध्याय को और 7वें अध्याय को पढ़ें तो 7वें अध्याय के अंत में एक दृष्टांत दिया गया, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। यीशु ने कहा, धन्य वो है जो मेरी बातों को सुनता है और उस पर चलता है, क्योंकि वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। Blessed the person who hears me, listen to me. He is like a person who constructed his house on the rock, solid rock. तब उसने कहा कि उस मकान और अन्य बहुत से मकान थे, वहां पर आंधी आई, तूफान आया और बहुत जोर से हवाएं चली, लेकिन वो मकान वैसा ही बना रहा क्योंकि वो चट्टान पर बनाया गया था। उसकी नींव चट्टान थी। यीशु ने कहा कि जो मेरे वचन को सुनता है उस पर चलता है, वो उस मकान के समान है जो कभी गिर नहीं सकता, मजबूत है, उसकी नींव मजबूत है। लेकिन एक और व्यक्ति ने मकान बनाया और वो अपने मकान को बनाया उसने रेत पर या उस स्थान पर जो बालू में जमीन, भुरभुरा जमीन, वहां पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, तुरंत थोड़े समय के मेहनत से मकान बन गया। लेकिन जब आंधी चली, तूफान आया, हवाएं चली, तो उस मकान पर लगी और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये उस व्यक्ति का जीवन के समान है जो वचन तो सुनता है लेकिन उस पर ध्यान नहीं करता और वो समाप्त हो जाता है जब तकलीफ, परेशानी, दुख आते हैं। मित्रों, हमारे विश्वास की परख तब होती जब हमारे ऊपर तकलीफ आती है, हमारे मित्र हमारे खिलाफ हो जाते हैं, अब बहुत सी बातें सोचते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर वचन का प्रभाव है जिसको हमने सुना है तो प्रभु हमें संभाले रहेगा। और प्रभु आज हमसे यही कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कई बातें कही, लेकिन मैं आपके सामने, जैसे मैंने अभी भी कहा, हम 5 बातों को देखेंगे। पहली बात, हमारा जो जीवन है वो हमारे मन की तैयारी को दर्शाता है। हमने अपने को कैसे तैयार किया। वो कहते हैं यहाँ पर, धन्य जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन की दीनता हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर हम प्रभु के राज्य के वारिस होना चाहते हैं तो हमें नम्रता के साथ, दीनता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। डियर फ्रेंड्स, टू बिकम हम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। पुअर इन स्पिरिट, व्हेन वी आर पुअर एंड कंट्राइट इन आवर स्पिरिट, वी आर सो हम्बल दैट वी से, लॉर्ड, talk to me, teach me, I am available. I want to be molded by you. और परमेश्वर हमारी मदद, हमारी सहायता। आगे लिखा है, और धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि शांति पाएंगे। यहाँ पर शोक का मतलब है
अपने कमियों के लिए जब प्रभु हमें कायल करता है, गुनाहों के लिए कायल करता है, तो हमें हमारे जीवन के कमियों को छुपाना नहीं है, उनको प्रभु के सामने लाने की आवश्यकता है, नम्रता के साथ, दीनता के साथ, शोक के साथ। भजन 51 में दाऊद का वर्णन है, जब नातान उसके पास आया तो लिखा है कि दाऊद अपने घर में चला गया और साष्टांग प्रणाम करके वो लेट गया परमेश्वर के सामने, रोता रहा। अब भजन 51 इस बात की साक्षी हमें सामने देती है। तो हमारी तैयारी में नम्रता, दीनता की आवश्यकता है, शोक करने की आवश्यकता है। और इन दिनों में हम से बहुत से लोग हैं जो दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं प्रभु का आना जल्द है। और जी हाँ, जल्द आएगा। जो घटनाएं घट रही हैं उसके द्वितीय आगमन के लिए हमें तैयार करती है कि हम अपने गुनाहों को मान रहे हैं। आज जाने अनजाने में जो हमारे जीवन में और जीवन के द्वारा हुए हैं, क्या उनको मान रहे प्रभु के सामने। वी नीड टू रियली प्रिपेयर आवरसेल्व्स बिफोर हिम इन ट्रू रिपेंटेंस, एंड देन ही विल पार्डन। वो क्षमा करने वाला। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जब वो थे तो उसने एक दृष्टांत दिया, और लूका के 18 अध्याय में इसका वर्णन पाया जाता है कि दो जन प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। एक फरीसी था जिसने बहुत अच्छी प्रार्थना करी। आज हम में से बहुत से लोग ऐसे ही कि हम प्रार्थना बहुत अच्छी करते हैं। उसने कहा, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं अन्य व्यक्ति के समान दुराचारी नहीं हूं, व्यभिचारी नहीं हूं, बुरा काम नहीं करता। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। आई फास्ट ट्वाइस ए वीक। मैं तमाम अपने कमाई का 10वांश देता हूं। प्रभु, आई गिव ऑल द टाइथ ऑफ माय ऑल अर्निंग्स। लेकिन दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं था। वो एक चुंगी लेने वाला था, जिसको समाज ने पापी मुहर लगा रहती है। पापी लोग होते हैं, दुनिया के लोगों को लूटते हैं और अपना घर बढ़ते हैं। उस व्यक्ति ने क्या प्रार्थना करी? वहां लिखा है कि वो जब वहां पर प्रार्थना करने गया तो उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो स्वर्ग की तरफ देखे, लेकिन उसने अपने छाती को पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यीशु मसीह ने कहा कि वो पहला नहीं, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो नम्र और दीन हो गया, ईश्वर की तरफ से धर्मी ठहरा जाकर अपने घर को चला गया। मित्रों, यह है परमेश्वर के सामने शोक करने की बात। जब हम प्रभु के सामने आते हैं तो वो हमें कायल करता है और हमें वो वहां पर लाकर खड़ा करता है। वो कहता है कि अपने आप को देखो। और हम पढ़ते हैं लूका के 15 अध्याय के अंदर 17 पद में लिखा है कि जब उड़ाव पुत्र अपने आप में आया तो उसने पश्चाताप करा। आप उसके पिता ने उसको स्वीकार करा और फिर से उसके जीवन में हरियाली आ गई, खुशहाली आ गई, सब कुछ समाप्त हो गया क्योंकि पिता ने उसको स्वीकार करा। When we really understand that we need to mourn, there is a comfort by the divine. हमारे जीवन को शुद्ध पवित्र करता है। फिर यहाँ लिखा है, हमारी तैयारी के अंदर लिखा है, धन्य जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी का अधिकारी होंगे। नम्रता, हमें घमंड नहीं करना है हमारे धन दौलत का, हमारी शिक्षा का। उसके सामने नम्रता के साथ रहना है क्योंकि परमेश्वर के वचन लिखा है कि वो घमंडी का सामना करता है, लेकिन जो नम्र दीन उन पर दया करता है। फिर आगे लिखा है, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण भूखे और प्यासे हैं क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। हंगर फॉर राइचियसनेस। एंड व्हाट इज राइचियसनेस? राइट स्टैंडिंग विद गॉड। परमेश्वर के सामने हमारा जो स्टेटस है वो परमेश्वर हमें देता है, उसके योग्य हमें बनने की आवश्यकता है। तो पहली बात हम यह देख रहे हैं वो पाया जाता पद 3 से लेकर के 6 तक, हम उसके सामने दीन बने, हमारे अंदर सच्चा शोक पाया जाए, हम नम्र बने और धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो जाए। दूसरी बात जो यहां पर है वो है हमारी सेवा। सेवा हम क्या करते हैं संसार में? यहां लिखा है 7 पद में, धन्य वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। Dear friend, there are many people in this world today who are definitely deprived. They look towards us for mercy. परमेश्वर के लोगों के लिए एक बात बहुत आवश्यक है कि वो परमेश्वर के गुण को समझे और दया करने वाले बने। परमेश्वर न्यायी है, लेकिन उसके न्याय के साथ दया भी है। God is a God of justice, but he also goes with mercy. परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, हम पर दया करे, हमें दया करने वाले बनाए। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर देखता है कि क्या सचमुच हम दयावान लोग हैं, दया करने वाले लोग हैं।
दया करना ईश्वर के स्वभाव को प्रकट करना है. When we become merciful or kind-hearted, in other words, we want to show, we are showing His character in and through our lives. During these days, my friend, there are many people who are deprived. Some of them, they don't have money to buy their ration even. And some of them are in a really desperate condition. And I've been talking from the pulpit again and again, and our assistant pastors also, that we need to help the needy. And I know that many of you have helped people who are in need, and you have done your best. That's what it needed. Many years ago, when Mother Teresa started her ministry, she was a teacher in the Loreto Convent in Calcutta. Then God revealed to her that you need to serve the poorest of poor. And she started, and what with few sisters she had, they'll go around and stand outside the banquet hall. Sometimes they're ridiculed, but they'll stand there. They receive the waste food, leftover, and they carried that and went and distributed among the poor and needy people. Today, Mother Teresa is no more with us in this world, but Nirmal Hriday, Sister of Charity, and the work is continuing almost every part of the world today. And how many people are helped today is uncountable. मित्रों, हम मदर टेरेसा की सेवा के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं. हमारे अंदर भी बहुत से लोग हैं, हमारे इस झुंड में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी को बिना बताए, किसी को बिना सूचित किए, गरीबों की जो मोहताज उनकी सेवा करते हैं, अनाथालय में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं. अभी पिछले रविवार की बात है, जब आराधना के बाद मैं बाहर निकला तो 2 सरदार जी हमारे यहाँ आए थे. एक ग्रंथी है यहाँ जो निकट का गुरुद्वारा है, और कहने लगे कि साहब मैं वहां से आया हूं और आप हमारी कुछ सहायता करिए. मैंने कहा कि आप बैठिए, उनको पानी पिलाया. मैंने कहा साहब आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप वही कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने शिक्षा में दी है. आप रोज लंगर खिलाते हैं हजारों लोगों को, आप रोज लोगों की मदद करते हैं. और यहां तक कि इन दिनों में जो लोगों की डेथ हुई है हॉस्पिटल्स में, आप एम्बुलेंस में आपके वॉलंटियर जाते हैं और उनको या तो शमशान भूमि में या कब्रगाहों में ले जाते हैं. आपको डर नहीं है कि आपको इन्फेक्शन हो जाएगा. ये ईश्वरीय करुणा आपके अंदर है. आप लोग दयावान लोग हैं. ईश्वर आपको आशीष दे. फिर मैंने उनको साधु सुंदर सिंह के बारे में बोला और उनको मैंने अपने प्रभु की गवाही दी. थोड़ा सा कुछ आटा दिया, कुछ पैसा दिया, बहुत खुश होकर गए. मित्रों, यही तो सेवा है. हम इस समय इस वक्त में उन लोगों की सहायता करना चाहते हैं जिनकी आवश्यकताएं हैं, जिनकी मौलिक आवश्यकताएं हैं. और मैं ये कहता हूं कि एक परिवार की हम सहायता आपने करी है, मैं जानता हूं, हम में से बहुत से लोग हैं जो करते हैं, और प्रभु आपको आशीष दे. लेकिन हमें और थोड़ा सा करना है, एक कदम और आगे उठाना है और उनकी मदद करनी है, सहायता करनी है जिनकी आवश्यकता है. पिछले दिनों हमने भी लोगों को यहाँ पर राशन दिया. लोग आते गए, हमने कुछ दिया राशन उनको, उनकी मदद करी. अभी 2 दिन पहले एक परिवार आया था, 3 छोटे छोटे बच्चे थे और पति पत्नी. कह रहे साहब बहुत दिन से नौकरी नहीं है, घर का किराया नहीं है, थोड़ा मदद कर दीजिए. थोड़ा सा पैसा दिया और थोड़ा राशन उनको दिया. आपने शायद इसे ज्यादा करा है. यहाँ जो मौलिक बात हुआ है, प्रभु कहता है कि हम दयावंत बने, क्योंकि अगर हम ऐसे हैं तो प्रभु हम पर दया करेगा, हम पर दया करेगा. मित्रों, ये हमारी सेवा है. ये दूसरी तीसरी बात है, हम इस संसार में मेल मिलाप के खोजी बने. प्रभु के वचन के अंदर हम पढ़ते हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा पद हम पढ़ रहे हैं, 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय, और उसके कुछ पदों को मैं पढ़ूंगा आपके सामने 16 पद से. 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय 16 पद से यहाँ लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे. यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना तो भी अब से उसकी ऐसा नहीं जानेंगे. इसलिए यदि कोई यीशु मसीह में और नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई. ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा में सौंप दी है. From now on, therefore, we regard no one according to the flesh, even though we once regarded Christ according to the flesh.
We regard him thus no longer. Therefore, if anyone in Christ is a new creation, the old have passed away, behold, the new has come. All this is from God, who through Christ Jesus reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. That in Christ Jesus, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. हमें ये सेवकाई दी गई मित्र इस संसार में, हमारा जो सेवा हमें प्रभु देता हुआ है, हम मेल मिलाप करने वाले बने। यहाँ लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनका अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हम इस संसार में मेल मिलाप कराने वाले हैं और यीशु मसीह कहते हैं, धन्य हो तुम हो जब तुम मेल मिलाप कराते हो, क्योंकि तुम ईश्वर के संतान कहलाओगे। हम इस संसार में दूसरी बात है, हम मेल मिलाप कराने वाले हैं और मेल मिलाप कराते हैं। जहां तकलीफ है, जहां झगड़े हैं, जहां मनमुटाव है, जहां लोगों में अलगाव बिखराव है, हमारी वहां पर मौजूदगी उनके लिए मेल मिलाप का कारण बने। चौथी बात, यीशु मसीह कहते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. हम इस संसार में प्रभु के नाम के कहलाते हैं और वो चाहता है कि हम ऐसे ही बने रहें, चाहे तकलीफ हो, चाहे बदनामी हो, चाहे कठिनाई हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। अगर हमारा मन प्रभु के लिए सीधा है, पवित्र है, शुद्ध है, तो प्रभु हमें उन सब से निकालता, आगे बढ़ाता है और ये हमारे जीवन की तैयारी को दर्शाता। हम किस प्रकार से तैयार अपने आप को करते प्रभु से मिलने के लिए। और आखिर बात है, वो कहता है, तुम इस पृथ्वी के नमक हो और तुम इस जगत की ज्योति हो। And the last, the fifth is, he says, you are the salt of this earth and light of this world. हमारे जीवन में अगर ये चारों बातें पाई जाए तो कोई कारण नहीं हो सकता है कि हम नमक के समान ना हो, ज्योति के समान ना हो। मित्रों, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे कि इन बातों पर हम गौर करें और इस बदलते हुए समाज में, इस संसार में जहां नैतिक मूल्यों का हर्ष हो रहा, आज चारों तरफ परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, हम प्रभु के मार्ग में बढ़ते चले जाएं ताकि हम नमक के समान बने, आज ज्योति के समान बने। कैसे बन सकते हैं? अगर हमारी मन की तैयारी उसकी महिमा के लिए है, अगर हम सचमुच में दया करने वाले हैं, अगर हम मेल कराने वाले हैं और अगर हम प्रभु के नाम से तकलीफों को आनंद के साथ सहते हैं, हम उसके शिष्य हैं, उसके चेले हैं। प्रभु आज के वचन से हमें आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए प्रभु जो आज आपने दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते प्रभु वचन की गहराई को समझें ताकि हम उसमें बढ़ते चले जाएं। लॉर्ड, वी थैंक यू एंड प्रेज यू फॉर स्पीकिंग टू अस दिस मॉर्निंग and we pray as we grow in you, Lord, help us to grow in your word so that our life become a building or house which is built upon the rock, and that is Lord Jesus Christ. Give us that grace to follow you sincerely. प्रभु, धन्यवाद देते कि आज आपका वचन हमारे हृदय रूपी खेत में बोया गया और हम चाहते प्रभु कि अंकुरित हो, इसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। वचन पर आपकी आशीष हो, आपकी कलीसिया के हर एक को आशीषित करें, हमारे जीवनों को स्वीकार करें, हमें शुद्ध करें, पवित्र करें और अपने योग्य बनाएं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। अब ये वक्त होगा कि हम अपने आखिरी गीत को गाएंगे, जो कि पाया जाता है इंग्लिश मेथोडिस्ट हिम्नल सॉन्ग नंबर 421, देयर इज अ फाउंटेन। और इस गीत के दौरान हम अपने हदियों को भी जमा करेंगे। चर्च के ऑफिसेस खुले हैं, आप लोग आ सकते हैं और अपने हदियों को आप जमा करा सकते हैं। द चर्च ऑफिसेस आर ओपन, यू कैन कम टू चर्च एंड यू कैन सबमिट योर ऑफरिंग्स, व्हाटएवर यू हैव कलेक्टेड एट योर होम ड्यूरिंग द सर्विस। और
आइए हम लोग सब अपने स्थानों पर खड़े हों और परमेश्वर की महिमा को करें। There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's vein, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains. The dying thief rejoiced to see that fountain in his day, and there may I go violently wash all my sins away, wash all my sins away, wash all my sins away, and there may I go violently wash all my sins away. Dear dying Lamb, thy precious blood shall never lose its power, till all the ransomed church of God be saved to sin no more, be saved to sin no more, be saved to sin no more, till all the ransomed church of God be saved to sin no more. Essence by faith I saw the stream thy flowing wounds supply. Redeeming love has been my theme and shall be till I die, and shall be till I die, and shall be till I die. Redeeming love has been my theme and shall be till I die. Then in a nobler, sweeter song I'll sing thy part to sing. When this poorless thing stammering tongue lies silent in the grave, lies silent in the grave, lies silent in the grave. When this poorless thing stammering tongue lies silent in the grave. Amen. आइए हम हदिये के लिए दुआ करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं तमाम आशीष बरकतों के लिए जो आपने हमें दिया। खास तौर से हदियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी ओर से है और होने दीजिए कि पिता ये आपके जलाली कामों में इस्तेमाल हो।
हम सबों को आशीष दें और बरकत दें। पिता, आपके झरोखे खुले रहें। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, अब यह वक्त होगा कि हम चर्च के अनाउंसमेंट्स को सुनेंगे और उसके बाद क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन के साथ हम लोग सब रुखसत होंगे। नाउ इट इज टाइम टू हियर द चर्च अनाउंसमेंट्स एंड फॉलोड बाय क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन बाय रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास। May I request him to come and to share the church announcements with all of us and closing prayer and benediction. प्रिय मित्रों, कुछ सूचना है, इस प्रकार से इनको याद रखेंगे। इस समय चूंकि लॉकडाउन का समय है, अभी भी और आगे भी हमारी आराधना रविवारी लिंक के द्वारा होगी ऑनलाइन। समय है रविवार को सुबह 10 बजे, इसको आप याद रखेंगे। We will continue our worship online through this link, and the time is every Sunday at 10 a.m. We have also Bible study, weekly Bible study on every Tuesday, Thursday and Saturday, which starts at evening 7:30. So please listen to that and be part of that also. We have our MYF meeting through Zoom every Sunday. We start at 2 o'clock. हमारे MYF की मीटिंग भी होती है हर रविवार को और दोपहर 2 बजे ये मीटिंग होती है। मैं चाहूँगा हमारे सारे जवान इसमें भाग लें और आशीष प्राप्त करें। शाम को 5 बजे संडे स्कूल की सेवा है और मैं चाहूँगा हमारे सारे माँ बाप याद रखें कि वो भी जूम के द्वारा है। हर संडे शाम को 5 बजे से संडे स्कूल है, तो मेहरबानी से अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो संडे स्कूल में भाग लें। हर सेकंड सैटरडे को हमारे WCS की मीटिंग होती है शाम को 4 बजे, वो भी ऑनलाइन के द्वारा। तो हमारी बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी से इसमें भाग लेने की कृपा करें। और हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जो आज आवश्यकता में हैं, जिनकी सैलरीज खत्म हो गई, जॉब खत्म हो गई। अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो आप उनकी मदद अवश्य करें। परमेश्वर इसके लिए आपको आशीषित करेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे कलीसिया के तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने आज की आराधना में हमारी मदद करी। पर्सनल वर्शिप में हम हर एक को धन्यवाद देते हैं। हमारे दोनों पासवान, पास्टर सरुण सावंत, पास्टर मान कुमार राय, मिस्टर प्रकाश तिग्गा, भाई नंद किशोर, नंदराज सुनार, हमारे MYF के सदस्यगण, तमाम हमारे यूथ के बच्चे, MYF के और हमारे छोटे बच्चे भी, जिन्होंने सहयोग अपना दिया देते रहेंगे, हम उन सब के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि अगर आप स्पेशल गाना देना चाहें बाइबल स्टडी के पहले या बाद में, तो आप उसको जरूर रिकॉर्ड करके भेज दें छोटे भाई साहब को और भाई तिग्गा को, ताकि जब बाइबल स्टडी होती है तो उसमें उन गानों को हम दे सकें और हम प्रभु की आराधना कर सकें। हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, अपने देश के राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालगण, हमारे मुख्यमंत्रीगण, हमारे पुलिस के लिए, हमारी सेना के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि देश में शासन व्यवस्था कायम रहे। हम प्रार्थना करें हमारे हॉस्पिटल्स के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट हो, तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पैरामेडिकल वर्कर के लिए, कि वो मेहनत से काम करते हैं और अपने आप को रिस्क में डालकर सेवा करते हैं। प्रभु ने आशीष दें और हम उनके निरंतर प्रार्थना करते रहें। हम प्रार्थना करें हमारे चर्च इंडिया के लिए, हमारे तमाम पासवानों के लिए, खासकर हमारे बिशप सुबोध सिंह मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। हमारे DSS के लिए प्रार्थना करें, हर एक एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस के लिए प्रार्थना करें, कमेटी के लिए प्रार्थना करें और हमारे हर एक पासवानों के लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। प्रभु इन दिनों में हम पर कृपा करें ताकि हम उसमें आगे बढ़ते चले जाएं। आइए हम प्रार्थना करें, उसके बाद आशीष वचन भी लें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु आज प्रातःकाल के लिए कि आपने हमसे बातचीत करी। प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस धन्य कलीसिया पर आपका आशीष हो। आज जो बीमार है प्रभु उनको छुएं, चंगाई दें। जो आपसे दूर है प्रभु अपने निकटता में रखें और जिनकी प्रभु बहुत ही दयनीय स्थिति प्रभु जी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आत्मिक रूप से, प्रभु उन पर दया करें, उन पर अनुग्रह करें। लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन दिस कांग्रेगेशन एंड ब्लेस ईच वन, सप्लाई आवर ऑल नीड्स। थैंक यू लॉर्ड दैट यू हर्ड आवर प्रेयर। Thank you Lord for your faithfulness. Thank you Lord for your promises. In Jesus precious name I pray. Amen. हम आशीष वचन लें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की हिफाजत, शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक
होती रहे। आमीन।